السلام علیکم دوستو، کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور ہمیشہ کی طرح ہنستے اور مسکراتے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد طیب اور میرا نام ہے محمد عامر اور میں ہوں محمد طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پنجابی ریئیکشن۔ تو بھائی اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے۔ اور آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے اس کا ٹائٹل ہے انڈیا کی سیر۔ آج ہم کرنے والے ہیں جی انڈیا کی سیر۔ تو چلو آئیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے پاکستان سے ایک دن بعد آزادی حاصل کرنے والے ایک ملک کی، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور اس لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کا حق بھی اسی ملک کو حاصل ہے۔ اس ملک میں 1 ارب سے زائد باشندے 100 سے زائد زبانیں بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں صرف 3% لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ہندو اکثریت رکھنے والے اس ملک میں قریباً 3 لاکھ سے زائد مساجد موجود ہیں، جو کہ کسی بھی اسلامی ملک سے زیادہ ہیں۔ ہم آپ کو اس ملک کے حیران کن اور دلچسپی رکھنے والے مقامات کے ساتھ ساتھ ملک کی تاریخ، رقبے، آبادی اور آزادی کی تفصیل مکمل طور پر فراہم کریں گے، جو کہ آج سے پہلے آپ کو یوٹیوب پر اردو میں دیکھنے کو ہرگز نہ ملی ہوں گی۔ لیکن اس ملک کی سیر پر جانے سے قبل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ بھارت کا سرکاری اور مکمل نام جمہوریہ بھارت ہے۔ بھارت کو انگلش زبان میں انڈیا، جبکہ ہندو اکثریت رکھنے کی وجہ سے اسے اردو زبان میں ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار، شمال میں بھوٹان، چین اور نیپال، جبکہ مغرب میں پاکستان واقع ہے۔ بھارت کا دارالحکومت اور قدیم شہر نئی دلی ہے، جو کہ آج سے 1000 سال پہلے بادشاہوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کے قدیم ہونے کا اندازہ اس میں تعمیر شدہ عمارات سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں، جن میں دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور قطب الدین کی تعمیر کردہ قطب مینار سر فہرست ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا کل رقبہ 1484 کلومیٹر ہے، جو کہ اپنے اندر 2,49,998 افراد کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن بھارت کے سب سے بڑے شہر ہونے کا درجہ ممبئی کو حاصل ہے۔ اگر ہندوستان کی تاریخ کی جانب آئیں تو اس خطے پر سب سے پہلی مستقل آبادیاں 9000 سال پہلے وجود میں آئیں، اور پھر ان آبادیوں نے ترقی کر کے سندھ تاز تہذیب کو جنم دیا۔ یہ تہذیب 26ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 19ویں صدی قبل مسیح تک اپنے عروج پر تھی، اور اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیبوں میں شامل ہوتی تھی، مگر اس زمانے میں بھی اسے کبھی ہند کے نام سے نہیں پکارا گیا، بلکہ سندھ کے نام سے جانا جاتا رہا۔ برصغیر بہت عرصے تک سندھ اور ہند میں منقسم رہا، اور پھر 7ویں صدی میں عربوں نے مغربی برصغیر کے علاقے سندھ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس حملے سے پہلے ہی یہاں کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن پھر عربوں کے قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد 13ویں صدی میں ترکوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ تمام ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ مغلوں کے حملے سے پہلے ہی ہندوستان میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان تھی، لیکن پھر 19ویں صدی میں انگریزوں نے مغلوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اس طرح ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ پھر 1857 کی غداری کے بعد یہاں کی حکومت کا تاج برطانیہ کے پاس چلا گیا، اور پھر جس بات کا ڈر تھا کچھ ویسا ہی ہوا کہ 1876 عیسوی کے بعد سے برطانوی شاہان کو شہنشاہ ہندوستان کا عہدہ بھی مل گیا۔
फिर मुल्क को संभालने के लिए बरतानवी हाकिमों ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी को इस्तेमाल किया और बरतानवी पैदावार सस्ती जबकि मुकामी पैदावार को महंगी करके मुकामी सनत को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और इसी तरह हिंदुस्तान से पैसा बरतानिया जाता गया। भारत की तहरीक आजादी का ज्यादातर जोर नस्ली इम्तियाज और ताबे तिजारती पॉलिसी के खिलाफ था और बरतानवी राज के खिलाफ एक ज्यादातर गैर तशद्दुद पसंद तहरीक चलाकर मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में भारत ने 1947 में बरतानिया से आजादी हासिल की और फिर हिंदुस्तान की तकसीम होकर नए मुल्क पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। ताल्लुकात की बात की जाए तो वैसे तो इस मुल्क के पाकिस्तान के अलावा तमाम तर ममालिक से ताल्लुकात खुशगवार हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ एक कशीदा ताल्लुक शुरू से ही बरकरार है जो कि इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 बार जंगों की वजह भी बन चुका है। तनाज़ा कश्मीर इन जंगों की बड़ी वजह थी जिसका मुआहदा आज तक ना हो सका, लेकिन हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को एक हमसाया मुल्क होने के नाते अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दिलचस्प मकामात की बात की जाए तो भारत में मौजूद चेल क्रिकेट ग्राउंड अपनी मिसाल आप है जो कि जमीन से करीबन 2444 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है। इसके अलावा केनचेनजुंगा जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है जिसकी बुलंदी 8586 मीटर है, भारत में ही मौजूद है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जबकि नेपाल का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इंडिया में एक सोने का बना हुआ मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर में 1 लाख अफराद को मुफ्त खाना मुहैया किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें सड़कों के वसी जाल बिछाए गए हैं, जबकि रेलवे नेटवर्क के हवाले से इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है। इसके अलावा ताजमहल एक मशहूर, मकसूद और मकबूल सियाहत गाह है जो कि सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। दुनिया भर में 70% मसाले का हिस्सा भारत से ही आता है। भारत में आज भी सांपों को खुदा माना जाता है और इनकी तवाज़ो दूध से की जाती है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट भी भारत के शहर नई दिल्ली में वाक़या है। रकबे और आबादी की बात की जाए तो भारत की कुल 29 रियासतें हैं जबकि भारत का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से यह दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इसके अलावा भारत का 9.6% हिस्सा पानी पर भी मुश्तमिल है जबकि आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर दुनिया की आबादी को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत की आबादी के लिए मुकर्रर किया जाएगा। भारत की कुल आबादी 1,33,91,80,127 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना यह भी है कि भारत आबादी के लिहाज से 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। भारत में करीबन 1000 से ज्यादा नस्ली गिरोह मौजूद हैं जो कि 1000 से ज्यादा जुबानें बोलते हैं, लेकिन भारत की 2 अहम सरकारी जुबानें हैं जिनमें इंग्लिश और हिंदी शामिल है। इसके अलावा गुजराती, तमिल, बंगाली, हिंदुस्तानी, मराठी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू सरकारी तौर पर बोली जाती है। भारत में मजहबी अकायद व अमाल के तनाव की खसूसियात एक बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। 1976 के आइन में की जाने वाली 42वीं तरमीम के मुताबिक भारत एक लादीनी रियासत है और इस सब का ये मतलब है कि भारत की रियासत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मसावी रवैया इख्तियार किया जाएगा। 2011 में भारत में की जाने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी का करीबन 79.8% हिंदू जबकि 14.2% मुसलमान है। इसके अलावा बाकी 6% दीगर मज़ाहिब जैसे मसीही, सिख और चीनी लोगों पर मुश्तमिल है। खेलों के हवाले से दुनिया भर में नापैद होने वाले कदीम खेल भारत में अब भी मशहूर हैं और खेले भी जाते हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, पहलवानी और गिल्ली डंडा वगैरह शामिल है। शतरंज को आमतौर पर भारत में इजाद होने वाला खेल माना जाता है जो कि आजकल दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा हॉकी को भारत का कौमी खेल माना जाता है। दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो करीबन 1.3 मिलियन सरगर्म फौजियों के साथ भारतीय फौज दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत है और भारत का सदर ही भारतीय मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर कहलाता है। भारत की मईशत की बात करें तो फिलहाल भारत की मईशत अमूमी जीडीपी के लिहाज से 7वीं बड़ी और कुव्वते खरीद के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है।
1991 की माशी इस्तेलाहात ने भारत को दुनिया की तेजी से उभरती हुई मईशतों में ला खड़ा किया और ये करीबन सनती मुल्क का दर्जा हासिल करने ही वाला है। बहरहाल इसके बावजूद ये मुल्क गुर्बत, करप्शन, खुराक और सेहत के मसाइल का शिकार है। इस मुल्क में शरह बेरोजगारी 2014 में 4% थी, जो कि 2017 तक बढ़ती ही चली गई। 2017 से 2018 तक इस मुल्क ने मईशत में काफी तरक्की की और 2014 में भारत की कुल जीडीपी 3 खरब 25 अरब 8 करोड़ 10 लाख 60,906 अमरीकी डॉलर थी। लेकिन 2018 से इस मुल्क की कुल जीडीपी में 8.2% इजाफा भी हुआ है। तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो भारत में लाजमी तालीम की कम अज कम उम्र 6 साल और लाजमी तालीम की ज्यादा से ज्यादा उम्र 14 साल है, जबकि भारत में शादी की कम अज कम उम्र 18 साल से 21 साल है। इसके अलावा भारतीय आबादी की औसत उम्र 68 साल है। भारत का कौमी जानवर बंगाल टाइगर, कौमी परिंदा इंडियन पीफोल, कौमी फूल नेम्फियो नेलैम्बो, जबकि कौमी फल आम है। भारत के मौजूदा सदर का नाम रामनाथ कोविंद है, जबकि भारत के मौजूदा वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। भारत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। भारत की करेंसी को इंडियन रुपी कहा जाता है और भारत का 1 रुपए पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को 5000 लाइक मिलने की सूरत में हम आपकी खिदमत में इस वीडियो का पार्ट 2 भी पेश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। जी तो गाइस, आज हमने इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ जाना और समझा और इंडिया की जो मुकम्मल जो हिस्ट्री है वो आज हमने सुनी। तो देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुल्क है और इसके जो मसाइल, जितना ज़्यादा बड़ा मुल्क होगा ना उसके जितने ज़्यादा ही ज़्यादा मसाइल होंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के भी वही मसाइल है और इंडिया के भी वही मसाइल है, करप्शन, गुर्बत, ठीक है ना। इस पे अगर वो काम कर तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं करते। अगर वो सही तरीके से अगर पाकिस्तान और इंडिया में टैक्सेस अदा करें तो जो गरीब आवाम है ना उनको बहुत कुछ जो है ना रिलीफ मिल सकता है और उनकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो सकती है। अगर गुर्बत की बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना गुर्बत है और गुर्बत की शरह काफ़ी ज़्यादा है। और मज़हब की लिहाज बात की जाए तो पाकिस्तान में मज़हब के लिहाज से तकरीबन 14 इशारिया कुछ जो है ना मुसलमान है और उसके अलावा जो है ना हिंदू और उसके अलावा कुछ परसेंट क्रिश्चियन और सिख वगैरह और बहुत सी आबादी है 6%। तो बहुत कुछ हमने भी इस पहले जो कुछ हम तकरीबन ऐसा कुछ जानते नहीं थे ज़्यादातर, जो आज हमने जाना है इस इंडिया के बारे में। हमने ये देखे ना वो आप मेरे से जानते नहीं थे। पुराने जो थे वैसे हाँ जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत से ऐसे जो मकाम आते हैं जो तारीखी मकाम में मुगलों के देखा जाए वहाँ पे जो है ना ताजमहल है जो कि शाहजहां ने बनाया था। यानी कि बहुत सी ऐसी जो पुरानी जो है ना हिस्ट्री है, जो वहाँ पे पुराने जो है ना टेम्पल हैं जो वहाँ पे आपको मिलने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे मकाम आते हैं जो तारीखी मकाम है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो भाई वीडियो बड़ी अच्छी थी, ज़बरदस्त थी, हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा समझा। अगर आपने भी कुछ इस वीडियो में कुछ समझा हो तो भाई हमें भी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।